بنا وأنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. بہت پرانی بات ہے، ملتان جانا ہوا، اندرون بوہر گیٹ. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک جاننے والے تھے، وہ بھی میرے ساتھ تھے. میں چھوٹا سا تھا، کوئی غالباً 12-14 سال کا. تو ان سے گفتگو ہو رہی تھی. جاڑے تھے، سردیاں تھیں اور اچھی خاصی سردی تھی. ملتان کی سردی بھی مشہور، ملتان کی گرمی بھی مشہور. تو اب تو وہ سردیاں ہی نہ رہیں. تو وہ کیا کرتے، تھوڑی دیر کے بعد جیسے کوئی بندہ نا نسوار کی ڈبیا نکالتا ہے جیب سے. بعض لوگوں کا ذوق ہوتا ہے یا کچھ مجبوری ہوتی ہے، عادت بن جاتی ہے، نسوار کی ڈبیا نکال کے ناک میں دیتے ہیں. تو ایسے وہ ایک چھوٹی سی بوتل نکالتے شیشے کی بند سے، اسے ایسے دیکھتے پھر رکھ دیتے تاکہ اس کا تیل نیچے بیٹھ جائے. اس میں ایک تیل تھا. اس کے بعد ڈھکن کھولتے اور ڈھکن سے ایسے تیل پہلے ڈھکن کے ارد گرد لگا ہوا ایسے ناک کے اندر لگاتے اور پھر اندر سے تھوڑا سا لے کے ایسے ناک کے اندر لگا کے ناک کو ایسے پکڑ کے کھینچتے 3-4 دفعہ. کچھ چند گھنٹوں کی نشست میں وہ 2 بار ایسا کر چکے تھے. یعنی ایک تو ہمارے جاتے ہوئے کیا، شاید اس وقت ان کا وقت آ گیا ہوگا اس بات کی، اپنے علاج کے معالجے کا انہوں نے کوئی وقت متعین کیا ہوگا غالباً، یا پھر ایسا ہے کہ انہوں نے اس وقت اس کو ضرورت سمجھا ہوگا. 2 بار ایسا کیا یا 3 بار، 2 بار تو اچھی طرح یاد ہے. اچھا، یہ ایک احساس رہا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر وہ گفتگو میں مختلف جو موضوعات تھے. اب میرے ایک ذہن میں ایک تحقیق تھی، ایک سسپینس اور ایک احساس کہ یہ کیا ہے. تو میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ ایسا کیوں کر رہے تھے. تو میرے والد صاحب نے فرمایا کہ ان کو کوئی ضرورت ہوگی یا ان کی کوئی مجبوری ہوگی، وہ ایسا کر رہے ہوں گے. تو والد صاحب نے فرمایا کہ شاید کوئی ضرورت ہوگی، میں ان سے پوچھ کے بتاؤں گا کہ وہ صاحب ایسا کیوں کر رہے ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک مخلص کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید کال ڈراپ ہو گئی، نہیں مل رہی. تو والد صاحب پھر خود گئے. اس دفعہ تو مجھے ساتھ لے گئے، پھر خود تشریف لے گئے اپنے کاروباری سلسلے میں. تو میں نے پھر جاتے ہوئے تاکید کی کہ آپ ضرور پوچھیے گا. جب واپس تشریف لائے تو فرمانے لگے کہ ان صاحب کی جیب میں وہ بوتل چھوٹی سی، وہ دراصل زیتون کا تیل تھا. اور وہ اس سے پہلے پرانے الرجی، دائمی نزلہ، فلو، ناک کا بند ہونا، حتیٰ کہ ناک کی ہڈی کا بڑھنا، ان جیسے عوارضات میں مبتلا تھے. بہت عرصہ اس کی دوائیں کھائیں، اس کا علاج کیا، لیکن وہ دوائیں اور علاج ان کو موافق نہ آئے. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. وہ موافق نہ آیا، جس سے وقتی تو فائدہ ہو جاتا اور پھر کیفیت ویسے ہو جاتی. تو فرمانے لگے کہ وہ مجھے بتانے لگے کہ جب سے میں نے یہ زیتون کا تیل ناک میں دینا شروع کیا ہے، ہلکا سا انگلی سے لگاتے تھے اور لگا دیتے تھے، اس دن سے میرے سارے مسائل حل ہو گئے ہیں. جی ایک مخلص کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کال پھر ڈراپ ہو گئی ہے. تو من لگے اس دن میرے مسئلے حل ہو گئے اور میری مشکلات دور ہو گئی.
یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ میں بعض اوقات وقتاً فوقتاً یہ چیزیں ایسے ٹوٹکے بتاتا رہتا ہوں اور بعض ٹوٹکوں کو دہراتا بھی رہتا ہوں، اس لیے موسمی تبدیلی ہے، ابھی لاہور کے موسم میں سردی کی ابتدا ہے اور اچھی خاصی پڑی ہے، بارش نے اس کو بہترین کر دیا اور بارش کے برسنے سے ہماری بیماریاں بھی دھل گئی ہیں۔ تو میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ ہم رات سوتے ہوئے زیتون کا تیل ناک میں ضرور لگا کے سوئیں، اور آج کے موسم میں اگر ہم یہ بچنا چاہتے ہیں اور اس بات سے نکلنا چاہتے ہیں، اور لازم اگر بچنا اور نکلنا چاہتے ہیں کہ ہمیں نزلہ، زکام، فلو یہ چیزیں نہ ہوں اور ان چیزوں سے ہمیں چھٹکارا ملے اور ہمیں ایک احساس ہو کہ ہمارا ناک فریش ہے اور ہماری طبیعت بالکل بہترین ہے۔ اور اس کا دوسرا فائدہ جو خاص طور پہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہ سموک، یہ دھند اور آلودگی کا اوپر جمع ہو جانا۔ ہمارے بادشاہوں نے آگ کے جلانے، فصلوں کو کٹائی کے بعد ان کو جلا دینا، بٹھے بند کر دیے اینٹوں کے تاکہ یہ آلودگی نہ پھیلے۔ اس کے باوجود بھی آلودگی ہے، اور چونکہ موسمی نمی ہے اور نمی سے وہ جمع ہو جاتی ہے اور پھر ہماری سانسوں میں جاتی ہے، پھر اس سے سانسوں کی بیماریاں، دمہ، الرجی، ناک کا بند ہونا، یہ تکلیفیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو موجودہ اس آلودگی کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ یہ زیتون کا تیل اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، میرے رب نے قرآن میں اس کی قسم اٹھائی ہے، والتین والزیتون، قسم ہے، کسی چیز کی تاکید کی اخیر ہو، تاثیر کی اخیر ہو اور اس کے کمالات کا آخر ہو تو اس میں میرا رب قسم اٹھاتا ہے۔ اور رب کی قسم ایک ہے ہم اللہ کی قسم کھائیں یا اٹھائیں، ایک یہ ہے کہ اللہ خود اپنی قسم اور اس چیز کی قسم لے۔ بہت بڑی بات ہے، یہ اپنی تاثیر میں ایک آخری درجہ رکھتی ہے اور حیرت انگیز مقام ہے اس کا کہ اللہ پاک خود قسم اٹھائے۔ تو سورۃ والتین میں زیتون کے تیل کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آج کے اس آلودگی کے موسم میں جہاں اعلیٰ درجے کی آخری ہم دوائیں کھائیں، رنگ برنگی، بہت مہنگی، اور جس کا نقصان ہمارے گردے، جگر، دل اور جسم اور معدے پر پڑتا ہے اور وہ چیزیں برباد ہو جاتی ہیں، ان کا نقصان ہوتا ہے، تو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ اس کی تاثیر کو دیکھیں۔ اور زیتون کا تیل آج کل تو ڈراپر ہیں بڑے محفوظ، کوئی ایک سا خالی مضبوط ڈراپر لے لیجئے، اپنے بیگ میں، اپنی گاڑی میں، اپنے آفس میں، اپنے گھر میں رکھیے، اور بچوں کو رات کو سوتے ہوئے صرف ایک قطرہ اس نتھرے میں، ایک قطرہ اس نتھرے میں آپ ڈال دیجئے اور اچھی طرح ناک مل دیجئے۔ ہلکی سی بعض اوقات بچوں کو کوئی چبھن سی محسوس ہو اور وہ حلق میں چلا جائے تو اچھی بات ہے۔ اللہ کے حبیب سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیتون، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ زیتون کا تیل ملیں بھی اور کھائیں بھی، اس کو استعمال بھی کریں اور بیرونی استعمال بھی۔ اور زیتون کا تیل کھانے میں استعمال ایک اعلیٰ درجے کی حیرت انگیز نعمت ہے، لیکن اس وقت ہم صرف اس کو ناک کے لیے، ناک کی ہڈی کا بڑھنا اور موجودہ آلودگی کا، اور آلودگی کا جو ہے بہت زیادہ نقصان دہ استعمال ہے۔ آلودگی ہماری نقصان صحت کے لیے بھی اور جسم کے لیے بھی، آلودگی بہت نقصان دہ ہے۔ دیکھیں ہماری جتنی بھی بیماری ہیں وہ ناک اور منہ کے راستے جاتی ہیں، جتنی بھی بیماری ہیں۔ اس میں ایک میں حدیث مبارکہ اور زیادہ آپ کی خدمت میں ایک اضافہ کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں، جس سے آپ کو میرے کام کو سمجھنے میں، میری بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ایک حدیث ہے، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان رات کو انسان کے ناک کے اندر قیام کرتا ہے، ناک کا باند صاف، یعنی یہ حصہ نوک، اس کے اندر شیطان قیام کرتا ہے۔
अगर तो इंसान ज़ाकिर और शागिल होता है, अल्लाह की ज़ात की तरफ ताल्लुक़ होता है और रातों को दुआएं, कलमा, दरूद, आमाल करके सोता है, तो उसे अपना शर फसाद फैलाने का मौका नहीं मिलता। और इंसान अगर ये चीज़ें नहीं करता तो शैतान अंदर ही अंदर बीमारियां फैलाता है, अंदर ही अंदर रोग फैलाता है। वो रोग क्या होते हैं? एक मुखलिस की कॉल लेते हैं, फिर अर्ज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ज़रा आवाज़ थोड़ा ऊंचा कीजिएगा। जी अजीम साहब, मेरा ना छोटा सा मसला है। मेरे पापा पर ना किसी ने बंदिश करवाई हुई थी जी तो उसकी वजह से ना जब से पापा ने ये लाहौर तस्बीह खाना में आना शुरू किया है ना, जी और या कहारों का विर्द आपने बताया था पढ़ा है, जी तब जी से उन्हें ना ये नहीं पता क्या मसला है, उन्हें तकलीफ होने लगी है, जी। उनकी ना दर्द उठती है। तो देखिए, आज मुझे भी आपकी उन्होंने आवाज़ आना है। नहीं आ रही, आवाज़ बहुत ही थोड़ी आ रही। शायद आपको तो इंशाल्लाह ठीक महसूस हो जी रही जी, होगी। मैं कह रही हूँ मेरे पापा पर ना बंदिश थी। अब कुछ आवाज़ बेहतर हुई है थोड़ी सी, अगर और थोड़ा सा ऊंचा कर अच्छा, लें। जी मेरे पापा पर ना बंदिश करवाई हुई थी किसी ने। ठीक है, आप तक ये बात यहाँ तक समझ आई है कि वो तस्बीह खाने में आए और या हाँ कहारो जी, जो है। हाँ, या कहारों का विर्द उन्होंने पढ़ना शुरू किया ना, जी जी तब से उन्हें तकलीफ होने लगी। उनके ना ये सीने के पास दर्द उठने लगी है। जैसे ही वो या कहारों का विर्द पढ़ते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं, तो उन्हें एकदम से तकलीफ होना शुरू हो जाती है। अच्छा जी। तो आप बताएं कि ये क्या वजह है। तो आज भी उन्होंने आना है, आपकी मेहरबानी मुलाकात अगर आप टाइम दे सकें तो। जी ठीक है, ये बताइए आप कि भी बता दें। आपके पापा ये चाहते हैं, वालिद ये चाहते हैं कि वो गला भी दबाएं और आंखें भी बाहर ना आएं? वो तो आएंगे। या कहारो नहीं, वो अल्लाह ये नहीं पाक जल्ल चाहते। शानहू का वो मुबारक, पाकीज़ा और बाबरकत नाम है, और कुरान पाक का ये नाम है, कुरान पाक का ये हर्फ है, जिसके पढ़ने से जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें बेचैन होती हैं, उनको रास्ता नहीं मिलता, उनको मंजिल नहीं मिलती, और वो अब अंदर से निकलती हैं। अब निकलने में हल्की फुल्की तकलीफ़ होती है। तो मेरा तो मुखलिसाना मशवरा है, आप इस तकलीफ़ को बर्दाश्त कीजिए। और ये तकलीफ़ चंद दिनों की है, और ये ऐसी भी तकलीफ़ खुदा न खास्ता नहीं कि इंसान बर्दाश्त ना कर सके। हल्की सी घुटन महसूस होगी, बाज़ औक़ात घबराहट महसूस होगी, और बस इस तरह की तकलीफ़ें हल्की फुल्की होती हैं चंद दिनों की। मसलन इंजेक्शन अगर लगाएं तो सुई की तकलीफ़ तो होती है, सर्जरी अगर करें तो थोड़ा सा उसकी तकलीफ़ तो होती है, पट्टी करने से ही तकलीफ़ होती है। तो मेरा तो मुखलिसाना मशवरा है, आप सारे घर वाले या कहारों को बहुत ज़्यादा पढ़िए। और ये मैंने बहुत आजमाया है, कलाम इलाही है, और हदीस मुबारका में इसके बहुत ज़्यादा कमालात, बरक़ात। और मैंने तो जितने लोगों को बताया है सबको, ख़ास तौर पे जिनको बंदिशें हैं, लाइलाज बीमारियां हैं और जादू हैं, अल्लाह के फ़ज़ल से उनको फ़ायदा हुआ है। तो मैं तो आपसे अर्ज़ करूँगा कि या कहार ही पढ़ें। और या कहारों का वो जो है, मैं जो तरीका बताता रहता हूँ कि एक थाल ले लें, टब ले लें। अगर सर्दी का मौसम है तो गर्म पानी ले लें, नीम गर्म, और मौसम आम है तो सादा पानी लीजिए, उसमें पाँव डिबो दीजिए, और पाँव डिबो के हाथ में तस्बीह लें। अवल आखिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ और 1100 दफ़ा पढ़ें आप या कहार। और इस तसव्वुर के साथ, यानी या कहारो पढ़ते हुए या कहार का तसव्वुर हो कि अल्लाह मेरे ऊपर जितनी भी जिन्नाती नज़र बद है, शैतानी असरात हैं, जादू हैं, मेरी ज़िंदगी में जितनी बंदिशें हैं, या मौला मैं गुनाहों से निकलना चाहता हूँ, मासियत से निकलना चाहता हूँ, नज़रों को पाक, जज्बों को पाक, अपने दिल को पाक रखना चाहता हूँ। तो या अल्लाह तो ऐसा है कि इस नाम की बरकत से ये चीज़ें ख़त्म कर दें। इस तसव्वुर के साथ पढ़ेंगे तो तसव्वुर के साथ जो चीज़ पढ़ी जाती है उसकी ताकत, उसकी तासीर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसमें हैरत अंगेज़ तौर पे 100 गुना, 1000 गुना जो है कमालात बढ़ जाते हैं। तो आप इस तसव्वुर के साथ इसको आप पढ़िए, और इस तसव्वुर के साथ इस पर थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको इसका बहुत ही नफ़ा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह पाक आपको दुनिया आखिरत की खैरें अता फरमाए, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगा।
मनाक के बांसे में शैतान का रात को क़याम करना, उसके बारे में अर्ज़ कर रहा था। अब ये जो जैतून है ये इतनी पुरतासीर तो है नेमत कि हदीस में इसके मुसलसल तस्करे आए हैं और कुरान में इसका तस्करा बड़े बेहतरीन पैराए में है, बड़े बेहतरीन अंदाज में। और इससे बेहतरीन अंदाज और कोई नहीं होता कि मेरे रब ने इसकी तासीर, इसका फ़ायदा, इसका कमाल एक है कि मेरा रब पूरी की पूरी किताबें इसके बारे में नाज़िल फरमा दे। इसके ये फ़ायदे, इसके ये फ़ायदे, इसके ये फ़ायदे। एक ये है कि मेरा रब इसके फ़ायदों के लिए सिर्फ एक कसम उठा ले। बस जैसे कोई फ़र्द कहे ना कि मैं कसम उठा के कहता हूँ मैंने अपनी आंखों से ये चीज़ देखी है और मैंने ये कसम उठा के कहता हूँ ये लफ्ज़, ये कलम मेरा है, ख़त्म। इस ये एक है बड़ी वजाहतें और एक है सिर्फ कसम, एक है सिर्फ कसम। तो आपने एक कसम उठाई अल्लाह ने कि ख्याल करना इसकी तासीर में अपने जहन में कमी बेशी ना होने देना। अगर यही जैतून का तेल नाक में लगाए तो शैतान अपना शर पैदा नहीं कर सकता। इसकी वजाहत करते हैं कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, मारूफ अमानत बात कर रही हूँ पढ़ाना से। जी जी। हकीम साहब दुआ कीजिए मेरे लिए, बस दुआ के लिए फ़ोन किया था और घर वालों के लिए भी। जी मैं दुआ करूँगा इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपकी दुनिया आखिरत बेहतर फरमाए। एक मसला था हकीम साहब के, मेरे 2 बेटे हुए हैं माशाल्लाह, तो ऑपरेट से हुए हैं ना जी। तो उसकी वजह से मेरी कमर में बहुत ज़्यादा पेन है और मतलब तो उसके लिए आप कोई दवाई वगैरह या कोई पढ़ने बता दें तो। कमर में दर्द जिन खवातीन को होता है डिलीवरी के बाद, ज़चकी के बाद, उनके लिए एक टोटका बताया करता हूँ, आप भी ज़रूर लीजिए। अस्कंदा गौरी, बखड़ा और सुंड, 3 चीज़ें मैं फिर दोहराऊंगा। यकीनन हमारे साथ जितने भी सामीन हैं जहाँ जहाँ भी हैं वो कागज़ कलम साथ लेके ही बैठते हैं ताकि आपको मेरी बात सुनने में और फ़ौरन लिखने में तकलीफ़ ना हो। असगन नागौरी एक जड़ी बूटी है, उसका रूट, उसकी जड़ है, रूट है। और बखड़ा एक हल्के फुल्के से कांटे होते हैं चने की तरह। और सुंड, खुश्क अदरक, ये एक एक छटांक ले लें, 50-50 ग्राम ले लीजिए। ये लेकर अब इसको सिर्फ 1/4 चम्मच लेना है, 1/4 टीस्पून, 1/4 चम्मच। और आजकल का मौसम तो इसके लिए बहुत कमाल मौसम है, सर्दी का मौसम है, बेहतरीन मौसम है। चाय से, दूध से आप इसको ले लीजिए। दिन में 4 दफ़ा भी ले सकते हैं 1/4 चम्मच, 3 बार भी, 2 बार भी। ये कमर के लिए, मोहरों के लिए, डिस्क के मसाइल के लिए और ख़वातीन में जब मसाइल होते हैं उनकी ज़चगी के बाद, उसके लिए बहुत ही बाकमाल चीज़ है, बहुत ही बाकमाल चीज़। आप ये ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। एक चीज़ और है, अपना दायां हाथ जहाँ तक आपकी कमर तक पहुँच सके, दायां हाथ जहाँ तक आपकी कमर तक पहुँच सके तो आपने सिर्फ सांस रोक के अलमुक से तो ये अल्लाह पाक जल्ल शानहू का मुबारक नाम है, वो आप पढ़ेंगे। और जब सांस टूट जाए उस सांस पे ये फूंक मार के वापस उसी जगह अपना हाथ आप फेर देंगे। अच्छा, ये हर नमाज के बाद आप ये पढ़ेंगे, इसकी कोई तादाद नहीं, सांस रोक के पढ़ना ही इसकी तादाद है। आपकी सांस में जितनी बार भी पढ़ा जाए इसको आप लाजिम पढ़िएगा, अलमुक़सित। और इंशाअल्लाह इसकी आपको बहुत ज़्यादा ताकत और तासीर मिलेगी और अल्लाह के नाम में बड़ी बड़ी ताकत है और अल्लाह पाक आपको सेहत आफ़ियत अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। मैं दुआ भी करूँगा आपके लिए, और आपके लिए सबसे बेहतरीन दुआ मैं जो करूँगा वो ये करूँगा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरत हसनत वक़िना अज़ाबन नार वअदखिलिल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह, हमारी दुनिया भी बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे। रिस्क, वुसअत, राहत, रहमत, दुनिया का ऐसा मामला ना हो कि लोग हमारे ऊपर हंसें, तालियां बजाएं और हमें देख के गुरेज करें और उनके दिल में हमारे लिए नफ़रत का जज्बा हो।
नफ़रत का जज्बा। बल्कि मौला जो हमें देखे, आका जो हमें देखे, या रब जो हमें देखे, उसके दिल में हमारे लिए आंखों का सुकून और दिल की ठंडक पैदा हो। वफ़िल आखिरत हसना, और बेहतरीन हमारी आखिरत हो, ख़ात्मा ईमान पे हो, ईमान वाली कब्र हो, ईमान वाली आखिरत हो, क़यामत का दिन दीदार मुस्तफ़ा नसीब हो जाए और अल्लाह उसके रसूल की खुशनुदी नसीब हो जाए। दुनिया का सबसे कामयाब इंसान यही, वफ़िल आखिरत हसनतम, ये सबसे बड़ी दुआ है। तो मोहतरमा आपने दुआओं के लिए कहा है, तो मेरे ख़्याल में मेरे लिए भी, सारी उम्मत के लिए, सारी इंसानियत के लिए, और इंसानियत का हर तबका और हर गिरोह के लिए इससे बड़ी दुआ कोई नहीं है। ये मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा दुआ है, और इस दुआ में बहुत कायनात मिलती है, बहुत तासीर मिलती है और अनोखी बरकत मिलती है। रब करीम आपको, आपकी नस्लों को, आपके घर वालों को इस दुआ की तासीर पूरी उम्मत को अता फरमाए। आमीन बेहुरमत सैयदुल अबरार वल मुरसलीन। जैतून का तेल नाक में जब आप देंगे, इसकी तासीर ये है कि जिस तरह अजवा खजूर के खाने में मेरे आका का फरमान मुबारक है कि जो शख्स 7 अजवा खजूरें खाएगा उस पर जादू असर नहीं करेगा, इसी तरह जो शख्स नाक में जैतून का तेल लगाएगा, अच्छा तेल हर लगा सकते हैं, सरसों का तेल, देसी घी, वैसलीन कोई, लेकिन जैतून के तेल के साथ मेरे रब की कसम है, इसकी तासीर कोई ऐसी अनोखी तो है। मेरे रब ने इस जैतून के तेल को बहुत बाकमाल और पुरतासीर कर दिया है अपनी कसम के साथ। सारी कायनात का रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन, उसने इस कसम के साथ ऐसा कमाल। तो इसको रात सोते हुए अगर बीमारियों से बचना है, शैतान अंदर बीमारियां फैलाता है। आप ये देखें कि अगर कोई बंदा कोई हसास आला लगा के नाक में देखे कि आपके नाक में एक फंगस है और उसमें करोड़ों वायरस और बैक्टीरिया हैं और ख़तरनाक जरासीम है, आप कितने परेशान होंगे। और वो कहेगा ये फंगस अंदर से अंदर, ये इन्फेक्शन अंदर से अंदर ख़त्म होना चाहिए, ये नज़र आता है। लेकिन एक अर्शी आँख है, एक फर्शी आँख है। वो फर्शी आँख कैमरे की आँख है या खुर्दबीन की या हसास आलों की आँख है। एक अर्शी आँख है, वो आँख मेरे सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आँख है, जिनकी आँखों ने ज़मीन के नीचे को जहन्नम बताया, ये ज़मीन के नीचे सिज्जीयीन कुरान कहता है, और जिनकी मुबारक और सच्ची आँखों ने आसमान के ऊपर जन्नत बताया। उस आँख ने बताया कि अगर ये नाक में लगाएं, हदीस मुबारका में इसको लगाने का तज़किरा आया है, और मैं इसको नाक के लिए भी मखसूस कर रहा हूँ और जिस्म पे भी लगाएं। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है जी। मेरी वालिदा का नाम शमीम मकरम, फोत हो गई है जी जी। पर मेरा कोई भी काम नहीं बनता, यानी कोई भी काम शुरू करूँ या नुकसान होता है जी तकरीबन शुरू से ही। मेरे साथ से मैं शादीशुदा हूँ, 3 बच्चे हैं, तो जी इतना जी। परेशान हूँ काम की वजह से। और ना मेरे कमर में इतनी दर्द रहती है कोई, यानी कि अभी भी मैं पूरे 1 महीना हो गया घर पे 4 पे भी लेटा हुआ जी। समझ नहीं आती क्या मैं करूं। और दूसरा, मैंने ना एक मेरा दोस्त था, मेरे ना बड़े भाई के पैसे थे, उसने मुझे दिए थे कि ये ना इन्वेस्ट कर लो काम में ना प्रॉपर्टी के, तो फायदा होगा। वो जी। उसने वो पैसे भी रख लिए, वो भी नहीं दे रहा वापस। करीब 20 लाख रुपए हैं, वो ठीक। मेरे बड़े भाई के हैं, जी लेकिन वो कोई यानी मुश्किल पेश आ रही है, कोई नहीं दिखाई नहीं देता मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ, समझ नहीं आता। ठीक ठीक। यानी आपके 2 मसाइल, एक तो पैसों का ना देना, कारोबार का मसला, और दूसरा कमर का दर्द है। जी जी। दूसरे लफ्ज़ों में एक तो आपके फिनंशियली मुआशी निज़ाम जो है मुतासिर है, और दूसरा कमर का दर्द आपको मुतासिर कर रहा है। ऐसा है, या हासिबो या हसीबो, ये एक बहुत ज़बरदस्त लफ्ज़ है। किसी से पैसे लेने हों और वो ना दे रहा हो, आपका हिसाब किताब बहुत मुतासिर हो रहा है, कारोबार कमज़ोर हो रहा है, और आपकी कारोबारी बंदिशें और तंगियाँ हैं, तो आप या हासिबो या हसीबो बहुत यकीन के साथ, ध्यान के साथ
हर नमाज के बाद एक तस्बीह आप ज़रा पढ़िए और ध्यान वाली पढ़िए, नमाज ज़रूर पढ़िए। हदीस मुबारका में नमाज को ज़िंदगी की तंगी से निकलने का अमल फरमाया गया है कि नमाज से ज़िंदगियों की तंगियाँ दूर हो जाती हैं। ज़िंदगी की तंगी, ज़ीकुल आयश, हदीस के अल्फाज का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। ज़िंदगी की तंगी, रोज़ी की तंगी नहीं। रोज़ी की तंगी तो उसका हिस्सा है। जो कहता है कि मेरी हर राहों में रुकावट है, हर रास्ता मेरे लिए बंद हो जाता है, और लोग चलते हैं राहें खुल जाती हैं, मैं चलता हूँ राहें सिमट जाती हैं और सुकड़ जाती हैं, तो उसे कहें नमाज पढ़। और वो कहते हैं मैं अगर नमाज पढ़ रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा, तो उससे कहें वो नमाज नहीं जो मेरी आका मदीने वाले की नमाज है, जिसका सजदा कैसे हो, जिसका रुकू कैसे हो, जिसका क़याम कैसे हो, जिसको किस वक्त में वक्त पढ़े जाए। वक्त की नमाजें बेवक्त की टकरें, कौन सी नमाज हो, तो मालूम होता है कि तू वो नमाज नहीं पढ़ रहा जिस नमाज के साथ वादा है कि ज़िंदगी की तंगियाँ दूर हो जाएंगी। ज़ीकुल आयश, ज़िंदगी के यरफ़ाउ ज़ीकुल आयश। तो एक तो नमाज या हासिबो या हसीबो, या हासिबो या हसीबो, एक तस्बीह पढ़ें पर ध्यान वाली, यकीन वाली, दर्द वाली, और अंदर के पूरे यकीन के साथ, अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक के साथ। एक तो आपसे ये दरख्वास्त है, ये करेंगे। और दूसरा कमर के दर्द के लिए अभी मैंने आपसे पहले ही एक मोहतरमा को बताया है, फिर दोहराए देता हूँ। असगन नागौरी 50 ग्राम, बखड़ा 50 ग्राम, सुन 50 ग्राम, तीनों को बारीक पीस लीजिए और चौथाई चम्मच से आधा चम्मच आप दूध के हमरा लीजिए। दिन में 4 बार, 3 बार या 2 बार या 3 बार आप ये दवा इस्तेमाल कीजिए। वो लोग जो बेल्टें बांधते हैं और वो लोग जो ये कहते हैं कि उनके मोहरों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, उनसे अर्ज़ करें कि ये ज़रूर इस्तेमाल करें। बहुत बेहतरीन चीज़ है। चंद दिन, चंद हफ्ते आप इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह आपको इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट, बहुत फ़ायदा और कमाल मिलेगा, और आपको इसकी हकीकी ताकत और तासीर मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। आप ये जो या हासिब या हसीब है, हर नमाज के बाद एक तस्बीह तो आप पढ़ेंगे, लेकिन कोशिश करें कि इसको आप सारा दिन बहुत खुला पढ़िए, बहुत मायूस ना हो। ये मैंने आपको एक पुरतासीर रब करीम का नाम दिया है, मायूस ना हो। इसको पढ़ें और बहुत ताकत से पढ़ें, इसको पढ़ें और बहुत यकीन से पढ़ें और एतमाद से पढ़ें और मुस्तकिल मिजाजी से पढ़ें। इंशाअल्लाह रब करीम आपको दुनिया आखरत की बरकतें और खैरें अता फरमाएगा। अल्लाह पाक आपको और ज़्यादा खुशियाँ दे और खैरें दे, आपके कारोबार रिज़्क़ में बरकत दे, और अल्लाह मुझे आपको अपने मामलात साफ़ रखने का मिजाज बनाए। देखें, कर्ज़ देने वाला है, मामलात की बात बता रहा हूँ, उसने फ़ैसला किया कि मैंने कर्ज़ देना है, अल्लाह के हबीब ने उसका जनाजा नहीं पढ़ा। इसने कर्ज़ देना है, उसने खाया नहीं, उसने फैसला किया मैं कर्ज दूंगा, और इसी हालत में मौत आ गई। मेरे आका कमली वाले ने उसका जनाजा नहीं पढ़ा। और एक शख्स वो है जिसने फैसला किया है कि हाँ दे दूंगा, जिसने ना देना हो ना, वो कहता है मैं दे दूंगा, या कहता है कि अपने दिल को समझाता है। मुझे एक साहब मिले, मैंने कहा तो लोगों के पैसे खा जाता है। कहने लगा यही तो मैं आपसे कहने आया हूँ कि मैं ये क्यों करता हूँ। मैंने कहा तेरे पास कोई दलीलें हैं? लगी एक दलील तो ये है कि मैं गरीब आदमी, ये मालदार है, इसको क्या कमी होगी, और इसने भी तो पता नहीं ऐसी कमाया होगा। हालांकि वो ज़रूरी नहीं, उसने रिज़्क़ के हलाल कमाया। एक तो कहने लगे कि मैं ये फैसला करता हूँ कि किसने कैसे कमाया, और दूसरा कहने लगे कि मेरे दिल में आता है कि बस दे दूँगा, अभी तो बहुत है, जब आएंगे दे दूँगा, अभी तो मेरे बच्चे हैं। इस तरह की दलीलें ज़िंदगी की खबर नहीं। किसी का हक खा के मर जाए तो कितने नुकसान की बात है। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम कीम साहब। जी वालेकुम सलाम। जी कीम साहब, मैं कौसर बात कर रही हूँ। जी
लाहौर से। तो मेरी बेटियों का मसला है। जी बेटियां तीनों, तो बड़ी बेटी का 2-3 बार रिश्ता हुआ और टूट गया। जी तो अब ना तो कोई रिश्ते आ रहे हैं और ना कोई, मैं जो पढ़ाई, जो मैं आपके उधर तस्बीह खाना भी आई थी 1 साल पहले, जी जी तो तब से लेके आए दोबारा फोन पे रब्ता तो उन्होंने कहा दोबारा वही आप पढ़ते गए, जी। ये या रब्बी मूसा या रब्बी कलीम, ये या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये डेली तकरीबन 1000 तो बैठ के पढ़ती हूँ, उसके बाद जी सारा दिन बेटियां भी और मैं भी पढ़। जी जी लेकिन कोई मसला, कोई नुकसान इतने हो रहे हैं, गाड़ियां ही थी वो सारी नुकसान हो गया, बहुत बहुत ज्यादा परेशान हो, और मेरा खामन भी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक तो मेरा मुखलिसाना मशवरा था कि आप मुस्तकिल मुख्तलिफ वज़ाइफ न बदलिए। जो वजीफ़ा मैंने आपको दिया है या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप इसको लाजिम पढ़िए और बहुत ज़्यादा पढ़िए, यकीन से पढ़िए। अक्सर ऐसा होता है कि घर का एक फ़र्द जो है इसको पढ़ता है और दूसरा नहीं पढ़ता, तो उसका फिर नुकसान होता है। घर का एक फ़र्द इसको पढ़ता है और दूसरा नहीं पढ़ता, सारा घर पढ़े, गाड़ी के सारे पहिए चले तो गाड़ी चलती है। दूसरा ये है कि आप इस वजीफ़े के साथ साथ आप सूरत इखलास, मेरा मशवरा है कि 2 तस्बीह सुबह 2 तस्बीह शाम पढ़िए। सूरत इखलास अव्वल आखिर 7 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और सूरत इखलास पढ़ के ना आप आसमान पे फूंक मार दें और इस तसव्वुर के साथ कि अल्लाह करीम अर्श के ख़जानों से मेरी और मेरी नस्लों के लिए तो गैब से कोई ऐसे रिश्ते अता फरमा जो उनके आपस में जोड़ भी हों, मोहब्बतें भी हों और प्यार भी हो और उल्फत भी हो। ए अल्लाह वो रिश्ते अता फरमा। आप अगर ये तसव्वुर कर लें और ये तवज्जो कर लें तो इंशाअल्लाह इस तसव्वुर और तवज्जो में अल्लाह पाक बेटियों को रिश्ते। और एक और चीज़ है कि सब्ज़ रंग का कागज़ ले लीजिए, उस पर बग़ैर ज़ेर ज़बर के सूरत ताहा लिखिए। सूरत ताहा लिख के उस कागज़ को बेटी के किसी धुले हुए लेकिन पहने हुए दुपट्टे में या कमीज़ में हो, इस्तेमाल किया हुआ पुराना हो लेकिन धुला हुआ हो, पाक हो, उसमें लपेट के आप रख दीजिए। अब हर जुमे और पीर के दिन उस पर खुशबू लगा दिया करें। हर जुमे और पीर के दिन सूरत ताहा सब्ज़ रंग के कागज़ पे आपने लिखना है और हर जुमे और पीर के दिन उस पर खुशबू लगा दें। इंशाअल्लाह ताला आपको इसका बहुत कमाल मिलेगा और बहुत तासीर मिलेगी। अल्लाह पाक बेटी के लिए ऐसे रिश्ते अता फरमाएगा जैसे फूल चुन लेते हैं, और उसको ज़िंदगी की राहत, खुशियाँ, खुशहालियाँ और खैरें अता फरमाएंगे। ये आप ज़रूर कीजिए। लेकिन जो या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो मैंने आपको वजीफ़ा दिया है, इसको ना छोड़िएगा। बाज़ औक़ात कुछ वक्त लग जाता है, लेकिन यकीनन इस पे बहुत ताकत और तासीर है और बहुत बरकत और खैर है, और इसके बहुत हैरत अंगेज़ कमालात हैं, बहुत हैरत अंगेज़ कमालात हैं। आप ये ज़रूर कीजिए, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने। अल्लाह पाक सब की बेटियों के नसीब मुक़द्दर अच्छे करे। मैंने एक बात अर्ज़ की थी कि जिस दिन अल्लाह पेट में कोई नेमत और बरकत की खुशखबरी अता फ़रमाए, उस दिन से रोज़ाना 2 रकात नमाज नफिल माएँ और बाप पढ़ना शुरू कर दे कि या अल्लाह इनके नसीब मुक़द्दर अच्छे कर और अल्लाह इनको आँखों की ठंडक बना। और एक दुआ का अक्सर अर्ज़ किया करता हूँ, जो ये चाहता है कि उसके बेटे नेक हों, बेटियाँ नेक हों, अल्लाह के वली हों, साले हों, सलाहियत हो, अंधे, काने, लूले, लंगड़े, अपाहज या किसी नशे में, किसी इल्लत में, किसी किल्लत में, किसी ज़िल्लत में वो मुब्तला न हों, और उनकी नस्ल दर नस्ल क़यामत तक अल्लाह पाक उनको दुनिया, दौलत, इज़्ज़त, सुरखरुइयाँ अता फ़रमाए। तो वो अपनी हर नमाज की रब्बे जालनी के बाद, अत्तहियात में रब्बे जालनी के बाद ये कुरानी दुआ लाजिम पढ़ें, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। छोटी सी मुबारक दुआ है कुरानी, लेकिन अगर आप पढ़ लें इसका फ़ायदा बहुत होगा। इसको अगर आप पढ़ लें तो इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। देखें, आप सब कुछ दे सकते हैं, जहेज़ में ट्रक दे सकते हैं, डायमंड सेट, हीरे, ज़मीनें, रकबे और गायें, दूध वाली भैंसें और नौकरानियाँ, नौकर, पर मुकद्दर और नसीब नहीं दे सकते।
ये अर्शी एक जहेज़ है, ये अर्शी नेमत है, ये अर्शी अता है, और ये इन मसनून दुआएं, इन कुरानी दुआओं में ये बात रखी हुई है। तो पहले दिन से अल्लाह से मांगना शुरू कर दें, और वो नफिल पढ़ के, या अल्लाह किसी भी नमाज के बाद नफिल पढ़ के, या अल्लाह तो इनके नसीब मुकद्दर अच्छे कर दें, इनको आंखों की ठंडक बना दें। माजूर बच्चा आंखों की ठंडक कहाँ होता है, वो तो आंखें जलती हैं कि बेचारे क्या क्या हाल है। और ऐसा बच्चा जो नाफरमान है, और ऐसी औलाद जो किसी इल्लत में मुब्तला है या किसी जिल्लत में मुब्तला है, आंखों की ठंडक कहाँ है। वालिदैन अक्सर इस पे गफलत करते हैं, और फिर वो वक्त गुजर जाता है जिस वक्त में फैसले होने होते हैं, उसके बाद फिर बैठ के परेशान होते हैं। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि इस पे आप ज़रा अपनी तवज्जो फरमाएं, और ज़रूर तवज्जो करेंगे, इंशाअल्लाह आपको, आपकी नस्लों को हमेशा का नफ़ा और फ़ायदा होगा, और आपको और आपकी नस्लों को खैरें और बरकतें मिलेंगी और राहतें मिलेंगी। आप ज़रूर कीजिएगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, नाक में तेल लगाना खुराटों का बेहतरीन इलाज है। जिनको खुराटे बहुत ज़्यादा आते हों, वो घर वाले तंग हों, ख़ुद तंग हों, उनकी नींद टूट जाती है, नाक का बंद होना, मौजूदा सर्दी के मौसम में रात को नाक का बंद हो जाना, और उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रॉप्स डालना, या सिर्फ जैतून का तेल मुस्तकिल लगा दें। रात को आँख खुली है, आपके नाक में फिर कोई तकलीफ़ महसूस हुई है, जैतून का तेल नाक में डालिए, या हथेली में डालें, उंगली से अच्छी तरह लगा दें, सो जाएं, अंदर चला जाए। बहुत कमाल चीज़ है अगर आप बहुत बड़ी बड़ी दवाओं से बचना चाहते हैं। सारी साइंस कहती है नाक ही वाहिद चीज़ है और मुंह जहाँ से सारे जरासीम जाते हैं 90%। उसके अलावा बाकी जो हैं वो हमारे खानों से, हाथ से, यानी 90% से ज़्यादा हमारा जो जरासीम जाने का ज़रिया और सोर्स है वो नाक है और मुंह है। अब नाक और मुंह में जब ये चीज़ जा रही तो इसको यहीं से रोक लें। और जैतून वाहिद चीज़ है, जब अंदर जाएगी तो हलक में जाएगी बह के, और जो बह के हलक में जाएगी ना, और ये हलक में जाना इसका ज़रूरी है, इसका बहना ज़रूरी है, हलक में जाएगी। और ये अब देखें, आपने नाक में लगाया, यही नाक इसी चीज़ में हलक में गई, और जब हलक में गई ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा इस पर आपको तासीर मिलेगी और बहुत ही ज़्यादा इसको फ़ायदा मिलेगा। आपको सेहत भी, तंदुरुस्ती भी, और मौसमी हालात जो आते हैं, हर किसी को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, छींकें, फ्लो, एक है छींकें किसी मौसम के एतबार से, कहीं डस्ट है, धूल है, वो फितरी चीज़ आ जाना एक है छींकों का तूफ़ान, वो नहीं होगा। अल्लाह पाक हमारे मुआशरे को सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए। ये टोटके चुन चुन के आपकी खिदमत में पेश इसलिए करता हूँ कि ये हमारे लिए ज़िंदगी की सेहत और राहत का ज़रिया होते हैं और खैर व बरकत का ज़रिया होते हैं। और ये टोटका जो मैंने आज आपको बताया, ये तो वैसे ही अर्शी टोटका है, और इंशाअल्लाह इस पे आपको बहुत बरकत और खैर मिलेगी। अब बैठ के दुआ करेंगे अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह जितने भी हमारे साथ हमारे सामीन हैं उन सबको खैरें और बरकतें, सेहत और आफ़ियत अता फरमाए। दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाल वल इकराम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह हमारे उठे हाथों को कबूल फरमा, खैर व बरकत का ज़रिया बना, राहत व रहमत का ज़रिया बना, आफ़ियतें मुतवज्जे फरमा, खैरें मुतवज्जे फरमा, बरकतें मुतवज्जे फरमा। दिल की दुनिया बदल दे मौला, मन की दुनिया बदल दे और जज्बों की दुनिया बदल दे। हमारी ज़रूरतों को गैब से पूरा फरमा। या अल्लाह हमारे साथ जितने भी लोग शरीक दुआ हैं, अल्लाह उन सब की आमीन पे कबूलियत की मोहर अता फरमा, महबूबियत मकबूलियत अता फरमा। अल्लाह उनके उजड़े दिल आबाद कर दे, उजड़ी दुनिया आबाद कर दे, उजड़े घर आबाद कर दे, और अल्लाह उजड़ी हस्तियाँ आबाद कर दे। मेरे वतन की खैर और हिफाजत फरमा, छावनियों की, कचहरियों की, ऐवानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह वतन के बादशाहों, वज़ीरों, मुशीरों, फ़कीरों, अमीरों की हिफाजत, किफ़ायत और किफ़ालत फरमा। वतन की सरहदों की हिफाजत फरमा।
اے اللہ گھر کے جتنے مسائل حل فرما، مشکلیں دور فرما، رزق عزت میں وسعت عطا فرما، بیٹیوں کے رشتوں میں غیب سے تو تدبیریں عطا فرما اور ان کے رشتوں میں خیریں ڈال دے۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے، بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے۔ ہماری ساری ضرورتیں بن مانگے غیب سے پوری فرما، در در کا بھکاری نہ بنا، اپنے در کا سوالی اور بھکاری بنا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔